الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہم اور آپ شرعی مسائل پروگرام کی دوسری نشست میں حاضر ہیں۔ چند مسائل سمجھنے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ناظرین نے چند سوالات بھیجے ہیں جن کے جوابات پیش کیے جا رہے ہیں، غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک سوال ہے گجرات سے، ہمارے ایک بھائی ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ 10 درہم کی مقدار یا ریٹ آج کل کے حساب سے کیا بنتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ ہمارے فقہا نے چونکہ کتابوں میں درہم کا کلمہ استعمال کیا ہے، شریعت مطہرہ کی نصوص میں درہم کا کلمہ بار بار استعمال ہوا ہے، بار بار آیا ہے، اور کئی مقامات ایسے ہیں جہاں عوام میں بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی جانیں کہ آخر یہ درہم کیا چیز ہے۔ مثلا مہر کی تعین کے وقت جب ہمیں کسی کا مہر متعین کرنا ہوتا ہے تو وہاں بھی درہم کا ایک کلمہ آتا ہے کہ مہر کم سے کم 10 درہم ہونا چاہیے یا اتنے درہم ہونا چاہیے، یا ہمیں اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت درہم کا ذکر ہمارے سامنے کیا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ درہم ہے کیا چیز؟ درہم کو ہم سمجھیں تو دیکھیے محترم حضرات، درہم ایک سکہ ہے، چاندی کا سکہ جو مختلف دوروں میں بدلتا رہا۔ آپ جانتے ہیں سکہ کوئی بھی ہو دور کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے، کبھی کوئی سکہ چلتا تھا، کبھی کوئی سکہ چلتا ہے، کبھی کوئی سکہ چلے گا۔ جیسے ہمارے یہاں نوٹ یا روپیہ وغیرہ بدلتا رہتا ہے، کبھی کوئی سکہ چل رہا ہے، کبھی کوئی نوٹ چل رہا ہے، کبھی کوئی روپیہ چل رہا ہے، ویسے ہی درہم بھی ایک سکہ ہے جو کئی دوروں میں بدلا گیا ہے۔ مختلف دوروں میں کئی وزن کے درہم رہے ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ وہ درہم جو شریعت مطہرہ میں استعمال ہوتا ہے یا جس کا اعتبار کیا جاتا ہے وہ درہم کون سا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اسی درہم کے بارے میں جاننا ہے کہ درہم کسے کہا جاتا ہے اور درہم کی مقدار کیا ہے۔ جب ہم مہر کی تعین کے وقت پوچھتے ہیں کہ اتنے درہم کم از کم مہر ہونا چاہیے تو یہ درہم کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ درہم جس کو شریعت مطہرہ نے استعمال کیا ہے درہم شرعی کہلاتا ہے۔ اوزان شرعیہ میں یعنی وہ پیمانے جن کا ذکر احادیث و نصوص میں آیا ہے ان میں ایک کلمہ درہم کا بھی ہے جس سے وزن بتایا جاتا ہے کہ فلاں چیز اتنے درہم کی ہے یا فلاں چیز اتنے درہم کی ہے۔ تو ان اوزان میں جن کو شریعت مطہرہ نے استعمال کیا ہے ایک وزن درہم کا بھی آتا ہے۔ درہم کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں، مہر کے بیان میں یہ آتا ہے کہ کم از کم مہر 10 درہم کا ہونا چاہیے۔ 10 درہم سے کم کا اگر مہر ہے، کسی نے متعین بھی کر دیا ہے تو 10 درہم سے کم کی تعین ہرگز جائز نہیں ہوگی، اور متعین کرنے سے بھی 10 درہم سے کم کا مہر متعین نہیں ہوگا۔ یعنی مہر کسی کا بھی ہو کم از کم 10 درہم ہونا چاہیے، اس سے نیچے مہر کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے بھائی سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخر ایک درہم آج کی ریٹ میں اس کی کیا قیمت ہوگی؟ تو جیسا کہ آپ نے سمجھا کہ درہم ایک وزن ہے، تو پہلے یہ سمجھیں کہ درہم کتنے وزن کا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم آپ کو ماشے اور تولے کی طرف لے کے جائیں جو اوزان پہلے چلتے تھے اب رائج نہیں ہیں۔ آج کے دور میں ان اوزان کو لوگ پہچانتے بھی نہیں یا جانتے بھی نہیں، آپ کا ذہن مزید الجھن کا شکار ہو۔ ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ آج کے دور کے حساب سے جو گرام اور ملی گرام چلتا ہے اسی میں آپ کو درہم کا وزن سمجھا دیا جائے کہ ایک درہم کتنے وزن کا ہوتا ہے۔ ایک درہم آج کے دور میں جو گرام اور ملی گرام چل رہا ہے اس کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ایک درہم 3 گرام 265.92 ملی گرام کا ہوتا ہے۔ ایک درہم 3 گرام 265.92 ملی گرام کا ہوتا ہے۔ یہ وہ مقدار ہے جس کو سامنے رکھ کر آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ 10 درہم کی مقدار کیا ہوگی،
5 दिरहम की मिकदार क्या होगी, 200 दिरहम की मिकदार क्या होगी। बस आपको याद इतना रखना है कि 1 दिरहम 3 ग्राम 265.92 मिलीग्राम का होता है। अब जितने दिरहम का भी आपको हिसाब लगाना है उतने दिरहम का इसी एतबार से हिसाब लगा लीजिए। रही 10 दिरहम की बात, चूंकि हमारे भाई पूछ रहे हैं कि 10 दिरहम की कीमत क्या होगी। 10 दिरहम 32 ग्राम 659.2 मिलीग्राम का होता है। 10 दिरहम 32 ग्राम 659.2 मिलीग्राम का होता है। इसके एतबार से अब आप आगे की भी कीमतों और आगे के भी औजान का हिसाब लगा सकते हैं। हां, अब इसकी कीमत क्या होगी ये फिक्स करके आपको इसलिए नहीं बताई जा सकती कि चांदी का रेट आए दिन ऊपर नीचे होता रहता है। वैसे भी इलाका बदलने से, जमाना बदलने से चांदी का रेट बदलता रहता है। चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव, कमी ज्यादती होती रहती है। इसलिए आपको ये फिक्स करके नहीं बताया जा सकता कि आखिर 10 दिरहम चांदी की कीमत कितनी होगी। 10 दिरहम चांदी 32 ग्राम 659.2 मिलीग्राम है। इसकी कीमत आप जहां हैं, जिस इलाके में हैं, जिस जमाने में हैं, उस जमाने के एतबार से मालूम कर लीजिए। मार्केट में जाइए और चांदी का रेट पूछिए तो इतनी चांदी यानी 32 ग्राम 659.2 मिलीग्राम चांदी जितने की होगी वो 10 दिरहम की कीमत होगी। अब ये जमाना बदलने से बदल भी सकती है, इलाके बदलने से बदल सकती है। हो सकता है आज कुछ और हो, कल को कुछ और हो जाए। लिहाजा कीमत फिक्स करके आपको नहीं बताई जा सकती। हम जितना बता सकते हैं वो सिर्फ इतना कि 10 दिरहम का वजन इतना है। आज ग्राम और मिलीग्राम के पैमाने में अगर हम देखें, 1 दिरहम 3 ग्राम 265.92 मिलीग्राम का होता है। इसी से अंदाजा लगा लें, आपको 200 दिरहम का हिसाब लगाना हो या 10 दिरहम का हिसाब लगाना हो, इसी को समझें और इसी से अंदाजा लगाएं। दूसरा सवाल हमारे एक नाज़िर ने भेजा है, वो पूछना चाहते हैं कि अंदाजन 3 सफ़ों की मिकदार फासला छोड़कर बगैर सुतरे के नमाजी के आगे से गुजरना किस वक्त जायज होता है और मस्जिद कबीर की तारीफ क्या है। इसके जवाब में थोड़ी तफसील है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नमाजी के आगे से गुजरना बहुत बड़े गुनाह की बात है। नमाजी के आगे से गुजरना बहुत बड़ा गुनाह है। मुख्तलिफ अहादीस में इस पर शदीद वज़ीदें वारिद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मोमिनीन को नमाजी के आगे से गुजरने से सख्ती के साथ मना फरमाया है कि नमाजी के आगे से गुजरने वाला अगर ये समझ ले कि नमाजी के आगे से गुजरने का क्या गुनाह है तो वो 40 साल वहीं खड़े रहने को बेहतर समझेगा नमाजी के आगे से गुजरने से, यानी नमाजी के आगे से हरगिज नहीं गुजरेगा। लिहाजा सबसे पहले हमें और आपको चाहिए कि हम जहां तक हो सके किसी नमाजी के सामने से न गुजरें। लेकिन एक तरफ जहां नमाजी के साथ सामने से हम लोगों को नहीं गुजरना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ नमाजी को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब वो नमाज के लिए खड़ा हो रहा है तो ऐसी जगह का इंतखाब करे जहां लोग उसके आमने सामने से न गुजरें। मसलन अगर हम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं तो दीवार के पास वाली जो सफ है, यानी हमारे और दीवार के बीच में या हमारे और किसी सतून के बीच में कम से कम फासला हो, वहां पर खड़े हों ताकि कोई हमारे सामने से न गुजर सके या हमारे सामने गुजरने पर कोई मजबूर ना हो। आमतौर से देखा जाता है कि हम सुन्नतें पढ़ने के लिए अपनी मसाजिद में जहां दिल में आता है वहां खड़े हो जाते हैं। बहुत से भाई तो जगह मौजूद होते हुए इतनी दूर खड़े होते हैं कि अगर कोई आने वाला नमाजी बाद में आता है तो उसे सोचना पड़ता है कि अब मैं कहां से गुजरूं। तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी नमाज की हिफाजत करें और हम ऐसे मकाम पर खड़े हों जहां से लोगों की गुजरगाह ना हो, आने जाने की जगह ना हो और जहां लोग मजबूर ना हो हमारे सामने गुजरने पर, लोगों को परेशानियां ना हो। हम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हों या घर में नमाज पढ़ रहे हों, बहरहाल हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। एहतियात जरूरी है, इसलिए कि नमाज अहम इबादत है, उसकी हिफाजत सबसे पहले वो करे जो नमाज के लिए खड़ा हो रहा है। इसीलिए फुक़हा ने फरमाया कि नमाजी अगर नमाज के लिए खड़ा हो रहा है मैदान में, बियाबान में, ऐसी जगह पर जहां बहुत दूर दूर तक उसके सामने कोई दीवार नहीं है, तो वहां उसे चाहिए कि अपने सामने सुतरा लगा ले, सुतरे के बगैर नमाज अदा न करे, ताकि कोई गुजरने वाला गुजरे तो सुतरे के बाद से गुजरे, उसकी नमाज
में खलल भी ना पड़े और गुजरने वाले पर कोई गुनाह भी ना हो। लेकिन अगर कोई बगैर सुतरे के किसी बियाबान में, किसी मैदान में खड़ा हो जाता है, अब अगर उसके सामने से कोई गुजरना चाहे, कोई जाना चाहता है, तो अब वो कैसे गुजरेगा और कब तक वहां खड़ा रहेगा, ये किन हालात में जायज है? तो फुक़हा ने उसकी एक ताजील की, उसके लिए एक मिक़दार मुतय्यन की कि कितनी दूर से गुजरा जा सकता है। चुनांचे इस बात की सराहत मिलती है किताबों में कि जहां तक नमाजी की नजर जा रही है, उतनी जगह को छोड़कर, उतनी मिक़दार जगह को छोड़कर उसके बाद कोई भी गुजरने वाला गुजर सकता है। मसलन एक शख्स नमाज पढ़ रहा है किसी बियाबान में, मैदान में, किसी खुली हुई जगह में, और वहां दूर दूर तक कोई दीवार भी नहीं है, तो अब यह देखा जाएगा कि वो शख्स जहां नमाज पढ़ रहा है उसकी जो सजदागाह है वहां जब वो नजर डालेगा तो नजर कितनी दूर तक जाएगी। उमूमन होता यह है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं, निगाहें जमा कर देखते हैं, तो हमारी नजर कुछ दूर तक जाती है, उस चीज से हटकर भी उसके गिरदोपेश में फैलती है। जहां तक हमारी नजर फैल रही है उसके बाद वाले इलाके से गुजरने वाला गुजर सकता है। अब ये जगह कितनी हो सकती है, इसकी भी फुक़हा ने वजाहत की कि तकरीबन 3 सफ छोड़कर उसके सामने से गुजरा जा सकता है। एक तो वो सफ जिस सफ पर वो खड़ा है, वो जगह जहां वो खड़ा हुआ है, उसके बाद 2 सफ की मिक़दार जगह छोड़कर उसके आगे से गुजरा जा सकता है। इसलिए कि आमतौर से जब हम किसी जगह नजर जमा कर देखते हैं तो इससे ज्यादा का हमें नजर नहीं आता, इसलिए उसके बाद से गुजरा जा सकता है। यही हुक्म जो खुली जगह और मैदान बियाबान का है, वही हुक्म मस्जिद कबीर का भी है। किताबों में मस्जिद कबीर का लफ्ज मिलता है और मस्जिद कबीर की इस मकाम पर फुक़हा ने जो तारीफ की है वो ये है कि जिसकी लंबाई 40 गज हो, यानी मिंबर और मेहराब वाली दीवार से लेकर उसके सामने वाली दीवार तक 40 गज का फासला हो, वो मस्जिद कबीर कहलाएगी। 40 गज यानी 60 फुट आज के हिसाब से। मिंबर वाली दीवार और उसके सामने वाली दीवार के दरमियान 40 गज का फासला हो तो मस्जिद कबीर कहलाएगी। इसका हुक्म वही है जो हुक्म मैदान और बियाबान में नमाज पढ़ने का है और उसके सामने किसी के गुजरने का है। यानी यहां भी हम 3 सफ छोड़कर उसके सामने से गुजर सकते हैं, लेकिन फिर भी एहतियात चाहिए। जिस तरह नमाजी को एहतियात चाहिए नमाज के लिए खड़े होने से पहले, वैसे ही गुजरने वालों को एहतियात चाहिए। रह गई वो मसाजिद जो आमतौर से हमारे शहरों में, हमारे इलाकों में बनती हैं, उन मसाजिद में चूंकि पूरी मस्जिद एक ही जगह के हुक्म में है, इसलिए फुक़हा ने मना किया कि जहां नमाजी खड़ा हो गया उसके बाद से लेकर उसके सामने तक जो दीवार है वहां से नहीं गुजरा जा सकता। ये पूरी मस्जिद एक ही मकाम और एक ही जगह के हुक्म में है, लिहाजा दीवार तक उसके सामने से कहीं से भी नहीं गुजरा जा सकता। मस्जिद कबीर का वो हुक्म है जो बियाबान और मैदान और खुली जगह के लिए है कि वहां हम 3 सफ की मिक़दार जगह छोड़कर सामने से गुजर सकते हैं। खुलासा यह है कि मस्जिद कबीर इस मौके पर जहां नमाजी के सामने से गुजरने और उसके गुनहगार होने की बात है, इस मौके पर मस्जिद कबीर यानी बड़ी मस्जिद उस मस्जिद को कहा जाता है जहां मेहराब वाली दीवार से लेकर सामने वाली दीवार तक 40 गज का फासला हो। अगर उससे कम है 40 गज यानी 60 फुट, अगर उससे कम है तो फिर वो मस्जिद सगीर के हुक्म में आएगी, मस्जिद कबीर के हुक्म में नहीं आएगी। मस्जिद कबीर में नमाजी के सफ और उसके बाद वाली 2 सफें छोड़कर उसके आगे से हम गुजर सकते हैं। एक और सवाल है जो मदरसा फैजान गरीब नवाज के किसी तालिब इल्म ने किया है। वो पूछते हैं कि जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा, और औरतों को अगर उनके शौहर मिलेंगे तो फिर उन लड़कियों को क्या मिलेगा जो दुनिया से कुंवारी ही चली गई। इसका जवाब यह है कि यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में मर्दों के लिए हूरों का इंतजाम किया है। कुरान करीम में है लहुम फीहा अज़वाजुन मुतहहरा व हुम फीहा खालिदून।
उनके लिए वहां बीवियां हैं, ऐसी बीवियां जो पाक की हुई हैं, और वो बीवियां जो हमारी दुनिया की बीवियां हैं वो भी वहां हमारे साथ रहेंगी। मोमिनीन सालिहीन जन्नत में अपनी बीवियों के साथ रहेंगे। ये वो सवाल है जो आम तौर से हमारे नौजवानों के जहन में उभरता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में तमाम इंतजामात फरमाए हैं, लेकिन मर्दों के लिए जहां हूरों का जिक्र आता है कुरान करीम में, वहां औरतों के लिए किस चीज का इंतजाम किया गया है ये जिक्र कुरान करीम में नहीं है, या ये जिक्र आम तौर से हमें मालूम नहीं है। जहां मर्दों के लिए हूरों का जिक्र मिलता है और कसरत से वाइज़ीन मुबल्लिगीन इस बात का जिक्र करते हैं कि जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी, वहां मर्दों का जिक्र, वहां औरतों का जिक्र नहीं करते कि औरतों को जन्नत में क्या मिलेगा। इसलिए ये सवाल हमारे नौजवानों के जहनों में उभरते रहते हैं और उनके जहन में ये आता है कि आखिर मर्दों के लिए तो हूरों का इंतजाम है, औरतों के लिए जन्नत में किस चीज का इंतजाम फरमाया है अल्लाह तबारक व तआला ने। तो हम आपको इस सवाल को बड़ी तफसील से समझा दें ताकि सारी बातें आपके सामने आ जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में मोमिनीन सालिहीन के लिए हूरों का इंतजाम किया है, जैसा कि खुद उसने कुरान में वादा किया है, और औरतों के लिए भी उनके जोड़ों का इंतजाम है। यानी जिस तरह औरतें अपने दुनिया में जो उनका शौहर था उस शौहर के साथ जन्नत में जिंदगी गुजारेंगी, ऐशो आराम के साथ अपनी जिंदगी बसर करेंगी, वैसे ही वो औरतें जो दुनिया से कुंवारी चली गईं उनके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने शौहर का इंतजाम किया है। यहां तीन सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये कि एक औरत निकाह से पहले ही, एक लड़की निकाह से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गई, अब वो जब जन्नत में जाएगी तो उसको क्या मिलेगा। दूसरी सूरत ये कि वो औरत जिसका पहले एक शौहर था, फिर उसके बाद किसी दूसरे शख्स के निकाह में आई, अब इसके दुनिया में दो शौहर हो गए, ये जब दुनिया से रुखसत होगी तो इसको जन्नत में किस शौहर के साथ रहना होगा। तीसरी वो औरत जो दुनिया में किसी शख्स के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रही थी, अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजार रही थी, वो दुनिया से रुखसत हो गई, उसको जन्नत में क्या मिलेगा। तो देखिए मोहतरम हजरात, जो दुनिया में जिंदगी शौहर के साथ बसर कर रही है और उसका एक ही शौहर है, यकीनन वो अपने शौहर के साथ जन्नत में जिंदगी गुजारेगी। अल्लाह तबारक व तआला उसको और उसके शौहर को एक जगह जिंदगी गुजारने का मौका अता फरमाएगा और वो दोनों आराम के साथ एक जगह जिंदगी गुजारेंगे। रह गई वो औरत जिसका पहले एक शौहर था, बाद में दूसरे से निकाह हुआ, अब वो किसके साथ जिंदगी गुजारेगी। तो उसके ताल्लुक से दो बातें मिलती हैं। एक तो ये कि उससे कहा जाएगा कि तुम जिसको चाहो इख्तियार कर लो, और दूसरी ये कि जो उसका आखिरी शौहर होगा वो उसके साथ जन्नत में जिंदगी गुजारेगी और जन्नत में वो उसी के साथ रहेगी। अब दूसरा कौल यह है कि उससे पूछा जाएगा कि तुम इन दोनों में से किस एक को पसंद करती हो, तुम जिसे ज्यादा पसंद करती हो उसके साथ रहो। इस दूसरे कौल की तरफ ही ज्यादा लोग गए हैं कि औरत से खुद पूछा जाएगा कि तुम इन दोनों में से जिसे चाहो पसंद कर लो और जिसके साथ चाहती हो उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारो, तुम जिसे पसंद कर लोगी वही तुम्हारा शौहर है। अब ऐसी सूरत में अगर औरत ने एक शौहर को पसंद कर लिया और वो दूसरा शौहर जिसके निकाह में वो रह चुकी है वो भी ये चाहता है कि यही औरत मेरे निकाह में रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी मायूस नहीं फरमाएगा, बल्कि उसके लिए हू बहू वैसे ही औरत की तखलीक फरमाएगा और फिर उससे कहेगा तुम इस औरत के साथ जिंदगी गुजारो, इस औरत के साथ रहो। वो लड़कियां जो कुंवारी ही दुनिया से चली जाती हैं उनको जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला उनसे पूछेगा कि जो मर्द भी तुमने देखे या इस वक्त देख रही हो, इनमें से कौन सा मर्द तुम्हें शौहर की हैसियत से ज्यादा पसंद है। तो जो मर्द उन्हें शौहर की हैसियत से ज्यादा पसंद होगा वो जिसे पसंद कर लेंगी, अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत कामिला से वैसे ही मर्द की तखलीक फरमाएगा और उनसे कहेगा अब तुम दोनों एक साथ रहो। खुलासा ये कि जन्नत में जहां मर्दों के लिए हूरों का इंतजाम है वहां औरतों के लिए भी इंतजाम है। शादीशुदा औरतें अपने शौहरों के साथ
اور कुंवारी लड़कियां जो दुनिया से कुंवारी ही चली गई हैं, उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हारा शौहर कैसा होना चाहिए, जैसा वो मांगेंगी अल्लाह तबारक व तआला कुदरत कामिला से उनको वैसा ही शौहर अता फरमा देगा। वो औरतें जो शादीशुदा हैं और जिनके यके बाद दीगरे 2 शौहर हुए हैं, उनसे भी उनकी मर्जी के मुताबिक पूछ लिया जाएगा कि तुम्हें जो शौहर पसंद है उसके साथ रह लो। इसके अलावा एक और सवाल हमारे पास आया है जो खालिस फिqही सवाल है। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से ये कोई साहब पूछ रहे हैं कि फलां किताब में एक अरबी की इबारत है, इस इबारत का क्या मतलब है? मर रआ अमरल कुफ़ार हसनन फ़क़त कफ़र, जिसने कुफ़ार के किसी काम को अच्छा समझा तो उसने कुफ्र किया। ये चूंकि खालिस फिqही सवाल है और अवाम से कहीं ज्यादा तलबा के लिए मुफीद है, ये पूछने वाले भाई भी गालिबन ज़ौक़ रखते हैं तलब इल्म का, इसलिए इन्होंने ऐसा सवाल किया है। तो खालिस फिqही और इल्मी सवाल है। इसका जवाब यह है कि कुफ़ार के किसी अम्र की तहसीन, यानी कुफ़ार के किसी अम्र को अच्छा समझना, किसी मामले को अच्छा समझना, यह कुफ्र है। इसका मतलब यह कि उनके मजहबी मामलात में से किसी मामले की तहसीन इस हैसियत से कि वो उनका मजहबी मामला है, वो उनके मजहब में है, हमारे मजहब में नहीं है, या खिलाफे इस्लाम है, उनके मजहब की तहसीन, उनके मजहब को अच्छा समझना, उनके मजहबी मसाइल और मजहबी मामलात, मजहबी मुतक़दात में से किसी एक को भी अच्छा समझना, यह कुफ्र है। इसका यह मतलब हरगिज ना समझा जाए कि कुफ़ार में से किसी शख्स के किसी भी काम की तहसीन नहीं की जा सकती। जाहिर है जो लोग कलिमा गो नहीं हैं उनमें भी बहुत सी आदतें ऐसी होती हैं जो अच्छी हैं। मिसाल के तौर पर कोई एक शख्स है जो कलिमा गो नहीं है लेकिन वो सच बोलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर ये आदत अच्छी है कि वो सच बोलता है। एक शख्स है कलिमा गो तो नहीं है लेकिन वादा निभाने में उसकी मिसाल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो भी हो लेकिन वादा निभाता है। ये कुफरी मामले की तहसीन नहीं होगी, ये कुफरी मामले को अच्छा समझना नहीं होगा। फुकाहा ने इस बात की सराहत की है कि इसका मतलब है कुफरी मामलात में से किसी मामले की तहसीन और कुफरी अकायद व नजरियात में से किसी अकीदे या किसी नजरिए की तहसीन जो इस्लाम के खिलाफ हो, उस तहसीन पर फुकाहा ने यह हुक्म लगाया फ़क़त कफ़र। यह मतलब नहीं है कि जिसने किसी काफिर के किसी भी काम को अच्छा कह दिया तो वो काफिर हो जाएगा, या किसी भी ऐसे शख्स के किसी वस्फ को, किसी आदत को जो कलिमा गो नहीं है, जो मुस्लिम नहीं है, दायरा इस्लाम से खारिज है, इस्लाम के दामन से वाबस्ता नहीं है, किसी ऐसी आदत को अच्छा कह दिया जो वाकईतन अच्छी आदत है उसके अंदर, तो वो काफिर हो जाएगा? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। बल्कि उनके मजहबी मामलात, उनके मजहबी नजरियात और मजहबी अकायद में से अगर किसी अकीदे या किसी नजरिए को अच्छा समझे, मजहब इस्लाम के मुकाबले में उसको तरजीह दे, मजहब इस्लाम के खिलाफ उनके नजरिए को पसंद करे, तो यकीनन ये शख्स दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, इसलिए कि इसे खुद ही अपना इस्लाम अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब ये दायरा इस्लाम में कैसे रहेगा? रह गए वो लोग जो किसी गैर कलिमा गो की किसी बात को सराह रहे हैं या किसी अच्छी बात की तारीफ कर रहे हैं, उन पर यह हुक्म नहीं लगाया जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।